So good morning everyone. Hope you all are doing well. In last session, we have started processing fibers into wool. Okay. And we we went through step number 1. Now in this session, we will see step number 2. The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease. Okay. So in step number 1, the process of shearing we have seen. Okay. In now step number 2, the sheared skin, that means जो sheared हुई skin है. Okay, after shearing we got the skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. Okay, तो स्किन के ऊपर जो भी स्टिकी मटेरियल है, डस्ट है और डर्ट है, उसको रिमूव करने के लिए we have to wash it thoroughly in tanks. This is called scoring. Nowadays, scoring is done by machines. Okay, it can be done in tanks also, and nowadays, with advanced technology, it is done by machines. In step 3, after scoring, sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated and sorted. So after scoring, जब उसको साफ किया जाता है उसके बाद, the hairy skin is sent to a factory. फैक्ट्री में भेजा जाता है उस स्किन को. ओके, विथ हेयर, वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, तो कोई लंबा होता है, कोई शॉर्ट होता है, बराबर हेयर, और कलर अलग अलग है, तो उन सबको उनके टेक्सचर के अनुसार उनको अलग सेपरेट किया जाता है और सॉर्ट किया जाता है. Now in step 4, the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. Okay, so from hair, small fluffy fibers, they are called burrs, are picked out. Okay, उसको separate किया जाता है birds को. You have seen the birds. Sometimes you are wearing sweater with birds. आपके neck के पास ऐसा fluffy होता है hairy, right? ऐसी design होती है fluffy hair जैसा, बराबर? It is birds. है ना? देखा है ना सबने? ओके, किसी किसी के स्वेटर पे ऐसे फर लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स. ओके, देन are picked out from the head. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scoured again and dried. तो फिर से उस फाइबर को वॉश आउट किया जाता है, राइट, क्लीन किया जाता है एंड ड्राई किया जाता है. This is the wool ready to be drawn into fibers. Now you will get the wool, okay, which is ready to be drawn into fibers. अब उसमें से easily fibers बन सकते हैं. Okay, next step, the fibers can be dyed in various colors as the natural fleece of sheep and goats is black, brown and white. So as we all know that natural fleece, that is natural hair color of sheep or goat, is black, brown or white. Okay, so if you want your choice, your color of choice, so for that we have to dye the fibers. So fibers can be dyed in various colors. Okay, so now this fleece will get some attractive colors. Step number 6, the fibers are straightened, मतलब उसको सीधा किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, combed, कॉम्बिंग किया जाता है, जैसे हम हेयर कॉम्ब करते हैं ना, इस तरह से कॉम्ब किया जाता है, एंड रोल्ड इनटू yarn, मतलब जो बॉल है वूल का वो बनाया जाता है, राइट. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, जो लंबे लंबे फाइबर्स है, लॉन्ग है, सो फ्रॉम दैट दे आर मेकिंग स्वेटर्स, एंड द शॉर्टर fibers are spun and woven into woolen clothes, और जो शॉर्टर है उसमें से woolen clothes बनते हैं, right? Okay, up till here everyone is clear? Any problem बेटा? यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है बेटा? Anyone? Okay, fine, very good. So in the figure you can see 3.8a, shearing a sheep. देखियो आप, बराबर, शिप का शेयरिंग होता है, उसके ऊपर से स्किन, पतली सी स्किन के साथ उसके हेयर भी रिमूव होते हैं, राइट. इन सेकंड स्टेप, स्कोरिंग इन टैंक्स. सो हियर आपको दिया है मैन्युअली स्कोरिंग होता है उसका, राइट, टैंक में, एंड हियर scoring by machine. Nowadays with advanced technology, scoring is done by machines also. Okay, and next step, rolling into yarn, you can see here. Okay, so all the steps are given here, easily you can understand, right? So now occupational hazard. So wool industry is an important means of livelihood for many
पीपल इन आवर कंट्री, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री में जो वूल इंडस्ट्रीज पे अपनी मतलब अपनी मनी के लिए डिपेंड है, बराबर, उनकी लाइफ वूल इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है. बट sorter's job is risky as sometimes they get infected by a bacterium, anthrax. Okay, so sometimes they get infected by a bacteria. Okay, bacterium, anthrax. So कौन ऐसा इन्फेक्टेड होता है जो ये वूल इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं, एंड व्हाई दे गेट इन्फेक्टेड, कैन एनीवन टेल मी? क्यों इन्फेक्शन हो सकता है? बिकॉज दैट एनिमल स्किन, गोट या शिप की स्किन भी ली जाती है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ दैट स्किन इज इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया, so that person who is working with this industry can also get infected. Understood everyone? Okay, which causes a fatal blood diseases called Sorter's diseases. Okay, तो इस वजह से उनको बहुत ही बड़ा ब्लड डिसीज हो सकता है जिसको बोलते हैं Sorter's disease. Such risk faced by workers in any industry are called occupational hazard. Occupational, that means जो जॉब वो कर रहे हैं, जो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर कोई भी रिस्क फेस करते हैं वो लोग, बराबर, तो इट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स. हैजार्ड मतलब रिस्क. ओके, सो this is all about that fibers of wool. Okay, so here we have done the session wool. Now we will see about silk. Silk fibers are also animal fibers. जैसे कि wool fiber animal fiber है, we are getting them generally from goats or sheep. Okay, so same here, silk fibers are also animal fibers. Silkworms spin the silk fiber. तो silk fiber कहाँ से हमको मिलते हैं बेटा? Silkworm से. Okay, the rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. Okay, please note it down, underline it. Okay, and write in your science notebook. आप इसकी definition लिख लेना and इसका record रखना बेटा, it is important. Okay, the rearing of silkworms for obtaining silk. Silk obtain करने की वजह से अगर silkworm को rearing किया जाता है, that is called sericulture. Find out from your mother, aunt, grandmother the kind of silk sarees they have. List the kinds of silk. So many types of silk are there. If you ask your mother or your grandmother or aunt, they will describe you. Can you give me one name of silk? Banarasi silk. Very good. Then बहुत सारे silk है. Bhagalpuri silk, Khadi silk. Okay, this is the types of silk. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. So we will see how silk is obtaining, but before that we have to see, okay, the life history of silk moth, कि जिसमें से हमको silk मिलता है उसकी life history देखते हैं. तो life history of silk moth, the female silk moth lays eggs, बराबर, female जो होती है ये silk moth वो egg ले करती है, from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms. Okay, तो उस एग में से हैच करके जो लार्वे होता है हैच होता है, एंड नाउ आफ्टर हैचिंग इट इज कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स. दे ग्रो इन साइज, तो वो बड़े होते हैं, एंड व्हेन ओके and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. Okay, तो वो साइज में बड़े होते हैं और अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं. इट इज कॉल्ड प्यूपा. इट फर्स्ट व्यूज अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, तो सबसे पहले अपने आजू बाजू एक नेट व्यू कर देते हैं, बराबर, दैट मीन्स एक जाली जैसा बना देते हैं, जाले जैसा, राइट. देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड in the form of the figure of H. Okay, see here, during these movements of the head the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. तो जब वो हेड ये अंदर करते हैं तब उसमें से वो फाइबर्स निकालते हैं which are made up of protein, प्रोटीन से बने फाइबर्स निकालते हैं, बराबर. So which hardens on exposure to air, तो जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं वो फाइबर्स, ओके, वो हार्ड बन जाते हैं एंड दे विल बिकम सिल्क फाइबर. तो हियर पूरी प्रोसेस दी है, देखो आपको, ये है फीमेल सिल्क मोथ, ओके, सिल्क में से, देन उसने एग रखे हैं यहाँ पर, बराबर. आफ्टर हैच्ड एग इट विल कन्वर्टेड इनटू सिल्कवर्म और कैटरपिलर बोल सकते हैं हम इसको.
राइट। उसमें से क्या होता है बेटा, देखो उसने अपने आपके आसपास, बराबर, देखो ये कुकुन विथ डेवलपिंग मोथ, बराबर, इट इज अ कुकुन, उसमें से ये मोथ हुआ, बराबर, सिल्क वॉर्म में से कुकुन बनेगा, उसमें से ये मोथ। अंडरस्टूड एवरीवन? दिस इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. Okay, so soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers. तो जो सिल्क मोथ होता है कैटरपिलर, वो कंप्लीटली अपने आप को फाइबर से कवर कर देता है. दिस कवरिंग इज नोन एज कुकुन. तो इन फिगर नंबर F, ओके, E एंड F यू कैन सी द कुकुन. ओके, E में पूरा कुकुन दिखाया है, उसके आसपास पूरा ये उसने क्या कर लिया है, कवरिंग कर लिया है, बराबर, सिल्क फाइबर से. The further development of the moth continues inside the cocoon. अभी ये cocoon के अंदर ही पूरा moth develop होता है. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel, right? तो ये जो सिल्क यार्न बना, सिल्क का जो सिल्क बना है जो, तो वो कितना मजबूत है पता है? अगर आप स्टील होता है ना, स्टील तो पता है ना, हाँ, जिसके बर्तन होते हैं हमारे घर में, तो स्टील, उसका जो आप जब यान बनाते हो वो जितना मजबूत होता है उतना मजबूत ये सिल्क का यान होता है. सोचो कितना मजबूत होगा वो, राइट? द सिल्क यान, दैट इज थ्रेड, बराबर, यान मतलब थ्रेड, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकुन ऑफ द सिल्क मोथ. There is a variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture. ओके, तो बहुत सारे सिल्क मोथ होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग डिफरेंट होते हैं वो, बराबर, और वो अलग अलग तरह के सिल्क यार्न भी देते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल कॉर्स, स्मूथ, शाइनी, तो कुछ ऐसे होते हैं सिल्क का टेक्सचर, कॉर्स होता है, किसी का स्मूथ होता है, राइट, किसी का शाइनी होता है, राइट? Thus, tussar silk, muga silk, kosa silk, etc. are obtained from cocoons spun by different types of moth. So that means different types of moth are giving us different types of silk like tussar silk, muga silk, kosa silk. Understood everyone? Okay. The most common silk moth is the mulberry silk moth. बराबर, मलबेरी का जो होता है, बराबर, ट्री, उसके लीव्स के ऊपर ये मलबेरी सिल्क मोथ मिलते हैं हमको, बराबर. तो इट इज द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft. तो ये जो कुकुन है मलबेरी सिल्क मोथ, बराबर, उससे मिलने वाला सिल्क फाइबर, इट इज वेरी सॉफ्ट, लस्टरस, दैट मीन शाइनी होता है, एंड इलास्टिक, मतलब उसको आप जब खींचते हो वो लंबा हो सकता है, राइट? इलास्टिक, दैट इज फ्लेक्सिबल होता है, एंड इलास्टिक, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स. तो वी कैन डाई दिस सिल्क इन ब्यूटीफुल कलर्स. ओके, so the silk which is obtained from mulberry silk moth, it is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors. Sericulture और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. तो बहुत सालों से ये चल रहा है सेरिकल्चर, राइट? इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल. तो बहुत सारी फैक्ट्रीज है हमारी, राइट, सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए. तो इंडिया इन बल्क में सिल्क प्रोड्यूस करता है. Okay, one activity is given here. Collect pieces of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook. No need to do anything. Okay, क्योंकि घर में मम्मी की साड़ी काट के आप लगाओगे, बराबर, तो मुझ पे फोन आएगा फिर मम्मी का कि क्या करवाया मैडम आपने, बराबर. तो कुछ करने की ये जरूरत नहीं है. यू जस्ट फाइंड आउट, आपकी मम्मी को बोलना कि आपको सिल्क की साड़ी दिखाए, तो यू कैन सी हाउ द सिल्क लुक्स. ओके, take help of your mother and teacher to identify the types of silk such as mulberry silk, tussar silk, airy silk, muga silk, etc. Okay, and you can compare the texture of this silk with that of the artificial silk pieces which contain synthetic fiber. तो artificial silk भी आता है, right, which contain artificial silk. okay, उसके अंदर क्या होता है बेटा? यस, आपने सीखा है आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, तो वो आर्टिफिशियल सिल्क भी आता है उसका. ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोथ whose caterpillars provide the various types of silk. Okay, now next activity, take an artificial, that is synthetic silk thread and a pure silk thread. Okay, जो आप रेयन बोलते हो ना, रेयन, अभी उसके मटेरियल बहुत ही फेमस है,
right? It is also one type of artificial, that is synthetic silk. Okay, and दोनों के हम thread अगर compare करेंगे, okay, तो burn these threads carefully. Did you notice any difference in the smell while burning? Okay, so now burn a woolen fiber carefully. Did it smell like burning of artificial silk or that of pure silk? Can you explain why? कैसा लगेगा बोलो, चलो आर्टिफिशियल सिल्क आप बर्न करोगे और जो नेचुरल सिल्क है, तो जो आर्टिफिशियल सिल्क है ना बेटा, उसका वो जब बर्न होगा ना तो उसकी स्मेल समथिंग लाइक प्लास्टिक आपको आएगी, राइट? टू रिमेंबर व्हेन द cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity. ओके, तो कब ये cocoon stage आता है, बराबर, सिल्क वॉर्म की हिस्ट्री में, ये देखने की एक्टिविटी दी है. फोटोकॉपी figure 3.9, cut out pictures of the stages of life history of the silk moth and paste them. ये भी आपको कुछ करना नहीं है बेटा, बुक में एज इट इज रहने देना है, बराबर. डोंट स्टिक इट इन योर नोटबुक, राइट? एंड इजीली यू कैन फाइंड आउट द स्टेप्स ऑफ लाइफ ऑफ द कैटर दैट सिल्क मोथ. ओके, तो क्या है बेटा उसकी लाइफ? सबसे पहले होता है वो एडल्ट सिल्क मोथ, मेल एंड फीमेल. फीमेल में से क्या बनता है बेटा? एग्स, बराबर, वो एग्स देता है ऑन मलबेरी लीव्स. देन उसमें से बनता है सिल्क वॉर्म, और वी कैन से कैटरपिलर आल्सो, उसमें से cocoon and cocoon with developing moth. Understood everyone? This is the life history of silk moth. Very easy. Okay. In India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. तो बहुत सारी women भी काम करती है silk production, बहुत सारी industries में, right? These are rearing of silkworms. तो वो लोग क्या करते हैं? rearing of silkworm, then reeling of silk from cocoons, तो मतलब cocoons में से silk को अलग करते हैं, and processing of raw silk into fabrics. ओके, और क्या करते हैं? जो रो सिल्क है फैब्रिक में से रो सिल्क बनाते हैं वो लोग, राइट? तो 3 स्टेप करते हैं वो लोग. फर्स्ट वन इज rearing of silkworm, second thing is reeling of silk from cocoons, and third one is processing of raw silk into fabrics. Okay, raw silk में से fabrics बनाते हैं. By their enterprise they contribute to the nation's economy. तो ऐसा करके वो नेशनल की जो नेशन है उसकी इकोनॉमी को भी अप करते हैं. चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन. तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन कहाँ पर होता है बेटा? चाइना में. इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमॉन्ग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री. तो बहुत सारी कंट्रीज है जो बहुत ही बल्क में बहुत ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन करती है, तो वन ऑफ देम इंडिया इज ऑल्सो देयर. ओके, इंडिया में भी बहुत सारा सिल्क प्रोडक्शन होता है. अंडरस्टूड एवरीवन? एनी प्रॉब्लम टिल हियर बेटा? एनीवन? Very good. Thank you. Okay. Now from cocoon to silk. अभी cocoon तो बन गया, cocoon मिल गया, right? उसमें से silk निकालना है. For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. ओके, तो सिल्क के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि मोथ्स को रेयर किया जाता है, बराबर. सिल्क जो वॉर्म है उसको उसका रेयरिंग होता है और उसमें से कुकुन्स को कलेक्ट किया जाता है, राइट? और उसमें से हमको सिल्क के थ्रेड्स मिलते हैं. रियरिंग सिल्क वॉर्म्स. तो अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम. वन टाइम में वो हंड्रेड्स जितने एग्स रख सकती है. द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स. तो ये जो एग्स है उसको बहुत ही संभाल के क्लॉथ पे रखा जाता है या तो फिर पेपर पे, और जो सिल्क वॉर्म फार्मर है उसको सेल किया जाता है, बेचा जाता है. द फार्मर्स ओके कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन. बहुत ही साफ कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में वो एग्स को रखते हैं. एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. और उस एग को जो टेम्परेचर शूट होता है जिसमें वो बहुत ही अच्छी तरह से फर्टिलाइज हो सके, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जैसी अच्छी कंडीशन उसको प्रोवाइड करते हैं, राइट? द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स. ओके, तो लार्वे जो एग में से हैच होता है, बाहर निकलता है, उसके लिए उस एग को वार्म किया रखा जाता है सूटेबल टेम्परेचर में, बराबर. चलो, हमने बहुत बार बेटा देखा है कि फॉर एग्जाम्पल डव है, बराबर, पिजियन है, उसने अपना एग रखा, तो आफ्टर पुटिंग द एग इट विल हैच इट.
ओके कैसे करते हैं बेटा, उसको वार्म रखते हैं, उसके पास बैठे रहते हैं, दैट मीन्स उसको वार्म रखने का ट्राई करते हैं, उसका टेम्परेचर ऐसा वार्म रखते हैं तो वो एक हैच होता है, राइट। तो सेम हियर ऑल्सो सुटेबल टेम्परेचर इज गिवन for the larvae to hatch from the eggs. This is done when mulberry trees, okay, bear a fresh crop of leaves. तो ये कब होता है, जब एकदम फ्रेश लीव्स आए हो मलबेरी ट्री पे, तब ये सब होता है। द लैर्वे कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म, जो लैर्वे होता है उसको क्या बोलते हैं हम, या तो कैटरपिलर या तो सिल्क वॉर्म, ओके। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, तो दिन रात वो खाता रहता है और बराबर अपनी साइज बढ़ाता है, राइट। देखो आपको सब भी ये स्टेप दिए बेटा। फीमेल सिल्क वॉर्म बराबर, उसने बहुत सारे एग रखे बेटा। चलो फिगर नंबर बी, मालबेरी ट्री के लीव्स पे रखे हैं, यहाँ पर आपको लीफ दिखाया हुआ है, राइट। सी में क्या होता है, लार्वा दैट इज कैटरपिलर सिल्कवॉर्म फीडिंग ऑन मलबेरी लीव्स, देखो ये लीव्स में से सब खा रहे हैं बराबर। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज इट विल बिकम कुकुन्स। अंडरस्टूड एवरीवन, वो साइज में बढ़ जाते हैं और कुकुन्स बनते हैं। बोलो, एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम बेटा? अंडरस्टूड एवरीवन, वेरी गुड। So the worms are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. क्यों freshly chopped mulberry leaves रखे जाते हैं बेटा? बोलो, worms के साथ worm को clean bamboo tray में बराबर रखा जाता है और उनके साथ freshly chopped, freshly cut किए हुए mulberry leaves रखे जाते हैं। For what? For what? क्यों रखते हैं बेटा? अभी तो मैंने बोला क्या खाते हैं वो लोग दिन रात, मलबेरी लीव्स खाते हैं, राइट। तो फॉर ईटिंग, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। सो वी आर दे आर कीपिंग फ्रेश मलबेरी लीव्स। आफ्टर 25 to 30 days the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. तो इतना सारा खा पी के बराबर बॉडी बना के कैटरपिलर क्या करते हैं, खाना बंद करते हैं। फिर अभी तो खाना बंद करना पड़ेगा ना इतना खाने के बाद, राइट। तो वो स्टॉप करते हैं एंड मूव टू टाइनी चैम्बर्स, एक छोटी सी चैम्बर बना देते हैं अपने आजू बाजू बराबर ऑफ बाम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कुकुन्स बराबर। तो उस चैम्बर, बाम्बू के जो ट्रे है उसके अंदर, चैम्बर के अंदर घुस जाते हैं और अपने आसपास क्या स्पिन करने लगते हैं, कुकुन्स बराबर, मतलब एक तरह का वो जाला बुनने लगते हैं, राइट। अंडरस्टूड एवरीवन, ओके। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स may be provided in the trays to which cocoons get attached, बराबर attached। तो कुकुन अटैच हो इसके लिए छोटे छोटे रैक्स या तो ट्विग्स बराबर वो ट्रे के अंदर होते हैं कि जिसके अंदर इजीली वो कुकुन बना सकते हैं। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन्स द कुकुन इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ, ओके। तो कैटरपिलर या तो सिल्कवॉर्म जो है वो क्या करते हैं, स्पिन्स द कुकुन इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ बराबर। तो उसके अंदर पूरा सिल्क मोथ डेवलप होता है। अंडरस्टूड एवरीवन, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक बेटा? बहुत ही इजी प्रोसेस है, ओके फाइन फाइन, वेरी गुड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ओके फाइन, चलो गुड। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है यू कैन रेज योर हैंड। ओके फाइन। नाउ प्रोसेसिंग सिल्क, अभी सिल्क का प्रोसेसिंग देखना है हमको बेटा। सो फॉर दैट अ पाइल ऑफ कुकुन्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, ओके। जो तो कुकुन बना है उसको, उससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, सिल्क फाइबर्स। तो कुकुन्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्ट्रीम। तो थ्री वे, या तो उसको सनलाइट में रखा जाता है और बॉइल किया जाता है, या तो फिर एक्सपोज टू स्ट्रीम मतलब स्टीम में बराबर। स्टीम मतलब आपको पता है ना, स्टीम मतलब वाटर स्टीम, उसमें एक्सपोज किया जाता है, राइट। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, उसमें से सिल्क फाइबर अलग हो जाते हैं बराबर। The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk.
बराबर. वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना बेटा आप इसको. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकुन. तो कुकुन से बराबर जो थ्रेड अलग किए जाते हैं उस प्रोसेस को बराबर फॉर यूज एज सिल्क, जिसको हम जो थ्रेड जो मिलते हैं हम तो कुकुन से दे वी आर गेटिंग इट एज अ सिल्क. बराबर. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क. रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन. मशीन से होता है विच अनविंड the threads for or fibers of silk from the cocoons. बराबर. तो ऐसा मशीन होता है जो कुकुन्स में से इजीली जो फाइबर्स या तो थ्रेड है सिल्क के उसको अलग कर देता है. Silk fibers are then spun into silk threads and then silk fibers are spun into silk thread. फाइबर में से उसके थ्रेड बनाए जाते हैं which are woven into silk cloth by weavers. और weavers उसमें से सिल्क के क्लॉथ बनाते हैं. बराबर. साड़ी बनाते हैं, कुर्ता बनाते हैं, जो भी. अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है बेटा? एनीवन? वेरी गुड. बराबर. सो वी हैव कंप्लीटेड chapter number 3. Okay. In next session we will discuss exercise of this chapter and main point also. Okay. Till then, have a nice day. Stay safe, stay home, and thank you so much.